Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, in this video lecture, we are going to start unit number 10, trigonometric identities of sum and difference of angle. Before to start this chapter, first we briefly revise the knowledge that you already know from the previous classes. What is trigonometry? Trigonometry is that branch of mathematics which deals with the measurement of three sides of a triangle and three angles of a triangle. हम ट्रिग्नोमेट्री के अंदर बेसिकली ट्राइंगल की सॉल्यूशंस में इंटरेस्टेड होते हैं. देयर आर 6 कंपोनेंट्स or 6 unknowns you can say in triangle. 3 of them are the sides length of a triangle and 3 are the measures of the angles of a triangle. So trigonometry is that branch of mathematics which deals with the measurement of the angles of a triangle and the sides of the given triangle. So you see that trigonometry is that branch of mathematics which deals with three angles and three sides of a triangle. Trigon mean three angles or three sides. From this you can say trigon mean triangle and metron mean measures. So in trigonometry basically we are going to measure the three angles and three sides length of a triangle. The content of this video lecture is fundamental law of trigonometry. In this video lecture we will derive fundamental law of trigonometry. Fundamental law of trigonometry is cos alpha minus beta equal to cos alpha cos beta plus sin alpha sin beta. We are going to derive this fundamental law of trigonometry in this video lecture, and from this fundamental law of trigonometry the consequences are, or you can say the deductions identities from the fundamental law of trigonometry are cos minus beta is equal to cos beta, cos pi by 2 minus beta is equal to sin beta, sin pi by 2 plus alpha is equal to cos alpha, cos phi by 2 plus alpha is equal to sin alpha, cos alpha plus beta is equal to cos alpha, cos beta minus sin alpha sin beta. Sin alpha plus beta is equal to sin alpha cos beta plus cos alpha sin beta. Similarly, we can deduce sin alpha minus beta, which is equal to sin alpha cos beta minus cos alpha sin beta from this fundamental law of trigonometry. Tangent minus theta is equal to minus time tangent theta, and tangent alpha plus beta is equal to tangent alpha plus tangent beta divided by 1 minus tangent alpha tangent beta. Tangent alpha minus beta is equal to tangent alpha minus tangent beta divided by 1 plus tangent alpha and tangent beta. तो इस वीडियो लेक्चर के अंदर सबसे पहले हम इस फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री को डिराइव करेंगे और फिर इस फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की मदद से हम ये नीचे 10 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को derive करेंगे. So actually these 10 trigonometric identities are actually comes from the fundamental law of trigonometry. और fundamental law of trigonometry में असल में difference of angle है alpha minus beta. So that's why you see in these identities sum of angles and difference of angle. So that's why in title you see that trigonometric identities of sum and difference of angle. तो यहाँ हमने इसको पहले derive करना है और फिर इसकी मदद से हमने ये remaining trigonometric identities को derive करना है. Remember कि there is a difference between equation and identity. Identity is true for all and equation is true for some specific values of the variable. If we have quadratic equation, so that will be true only for two values, and in case of the identity are true for all values. So that is the difference between identity and equation. अब इन
फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री को प्रूफ करने के लिए हमें प्रीवियस नॉलेज दरकार है। सो थोड़ा सा जो प्रीवियस क्लासेस में आप लोगों ने एंगल या आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, साइन, टेंजेंट, कॉस, कोटेंजेंट, सीकेंट, कोसीकेंट के बारे में पढ़ा है, उसको थोड़ा सा रिवाइज करता हूं और फिर हम इस फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री को डिराइव करेंगे और फिर इसकी मदद से ये रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हम डिराइव करेंगे। लेकिन ये आप याद रख लें कि ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आप देख सकते हैं, these all trigonometric identities are used in different branches of mathematics. Especially these identities plays an important role in calculus, where these identities are used to simplify the complicated expressions. Calculus is a main subject in mathematics which deals with instantaneous rate of change, a very practical subject. एंड वो जो कैलकुलस हैं ये न्यूटन और लिबनीज ने इंट्रोड्यूस किया हुआ है। सो कैलकुलस में हम मोशन के बारे में स्टडी करते हैं। तो जब हम कैलकुलस को स्टडी करते हैं तो वहाँ पे ये जो आइडेंटिटीज़ हैं, मोशन को जब हम स्टडी करते हैं तो वहाँ पे ये आइडेंटिटीज़ एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। whenever there is a complicated expressions, we use these identities to simplify those expressions. So ये आपके पास इनकी implications हैं। Okay, now to derive the fundamental law of trigonometry या इस आइडेंटिटी का अगर मैं प्रूफ करूँ उससे पहले मैं थोड़ा सा प्रीवियस नॉलेज के ऊपर जाता हूँ कि प्रीवियसली आप लोगों ने आइडेंटिटीज़ के बारे में क्या पढ़ा था और वो हमने अब इसकी प्रूफ में यूज़ करना है। सो दैट्स व्हाई आई एम रिवाइजिंग दैट प्रीवियस नॉलेज। ओके, प्रीवियस नॉलेज, फर्स्ट ऑफ ऑल एंगल। व्हाट इज एंगल? आपके पास अगर टू रेज हैं, यू क्लियरली सी दैट लेट्स से दिस इज ओ ए एंड लेट्स से दिस इज ओ बी, दिस आर टू रेज। दोनों रेज का आप देख सकते हैं कि इनिशियल पॉइंट आपस में मिला हुआ है। सो दिस इज द यूनियन ऑफ टू रेज। तो यहां पे ये जो डिस्टेंस बन रहा है दैट इज एंगल, दिस इज कॉल्ड एंगल। The distance between two rays when they are meet at their initial point. This is the initial point of the array and this is the terminal point of the array. So this distance is called angle और इस angle को हम, ये जो आपके पास distance है, इसको हम measure करते हैं with the help of degree और रेडियन। तो यहाँ पे आपके पास डिग्री और रेडियन एंगल की मेजरमेंट के लिए दो यूनिट्स हैं। इनमें से जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो आपके पास है रेडियन। सो दैट इज एंगल। अब आपका स्टैंडर्ड एंगल कौन सा होगा? यू नो फ्रॉम द प्रीवियस क्लासेस, दिस एरे इज कॉल्ड इनिशियल एरे और इनिशियल साइड ऑफ द एंगल एंड दिस इज कॉल्ड टर्मिनल साइड ऑफ द एंगल। सो जब आपका इनिशियल साइड एक्स एक्सिस के ऊपर हो, आई एम प्लेसिंग दिस इनिशियल साइड ओ ए ऑन एक्स एक्सिस और टर्मिनल साइड आपके पास प्लेन में किसी भी क्वाड्रेंट में हो सकता है। तो यू सी दैट in this case the initial side is on x axis and the terminal side is on y axis. So then this measurement, which is called angle, usually denoted by theta or you can denote it by alpha, beta. So this must be called standard angle. When one of the side, especially initial side, is on the x axis, so then that angle is called standard angle. So ये आपके पास है standard angle. Okay, standard angle के बाद आपको पता होना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ये याद रख ले कि साइन 0 डिग्री 0 के बराबर है, काज 0 डिग्री 1 के बराबर है, साइन 30 डिग्री 1/2 के बराबर है, काज 30 डिग्री स्क्वायर रूट 3/2 के बराबर है। इसी तरह साइन 45 डिग्री 1 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 2 के बराबर है, काज 45 डिग्री
1 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट 2 के ही बराबर है. सो इट मीन्स दैट on 45 cos एंड साइन gives the same value. इनके अलावा साइन 60 डिग्री स्क्वायर रूट 3/2 के बराबर है. cos 60 डिग्री आपके पास 1/2 के बराबर है. इसके साथ साथ साइन 90 डिग्री 0 के बराबर है. cos 90 डिग्री साइन 90 डिग्री 1 के बराबर है और cos 90 डिग्री 0 के बराबर है. इसके साथ साथ टेंजेंट आप सबको पता है कि टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा. यू ऑल नो दिस. सो ये सारा सब कुछ जो है मैं रिवाइज इसी वजह से कर रहा हूँ कि वी विल यूज दिस इन दी प्रूफ ऑफ फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री. इसके साथ साथ अगर आप एक यूनिट सर्कल को कंसिडर कर लें, इफ आई कंसिडर अ यूनिट सर्कल, नाउ दिस इज अ यूनिट सर्कल, मीन इसका रेडियस आपके पास 1 है और ये आपके पास ओरिजिन इसका सेंटर के ऊपर है, मीन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट एक्सिस जो है या रेफरेंस फ्रेम के ओरिजिन के ऊपर उसका आप सेंटर रख रहे हो और इस सर्कल की सरकमपेरेंस के ऊपर आप एक पॉइंट ले लें. तो ये जो आपका पॉइंट है इट इज अ पॉइंट इन प्लेन. सो इस पॉइंट की पोजीशन के लिए आपके पास कोऑर्डिनेट्स होंगे. लेट्स से दिस इज पॉइंट P. सो इसकी कोऑर्डिनेट्स हमारे पास x और y, मीन इसका x एक्सिस के ऊपर जो डिस्टेंस है ये x यूनिट होगा और y एक्सिस के ऊपर ये जो डिस्टेंस है ये आप देख सकते हैं ये आपके पास y होगा. तो यहाँ पे ये आपके पास y के बराबर होगा. अब अगर यहाँ पे आप ये ट्राइंगल बना दे, दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में यहाँ पे ये जो स्टैंडर्ड एंगल है ये वाला, दिस इज अ स्टैंडर्ड एंगल, लेट्स से दैट इज अल्फा और यू कैन से दैट एंगल इज थीटा और ये स्टैंडर्ड एंगल है. तो फिर इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये आपका हाइपोटेन्यूज जो आपको दिखाई दे रहा है, बिकॉज दिस इज 90 डिग्री, ये आपका 90 है इस वर्टेक्स के ऊपर, तो ये आपका हाइपोटेन्यूज और ये हाइपोटेन्यूज असल में रेडियस है तो ये 1 के बराबर होगा. तो यहाँ पे साइन थीटा परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, सो साइन थीटा y/1 और कॉस थीटा बेस बाय हाइपोटेन्यूज तो x/1 के बराबर होगा. तो यहां आप देख सकते हैं कि x और y, तो इस पॉइंट जो सरकमपेरेंस के ऊपर था सर्कल का, कोऑर्डिनेट्स थे इसके x और y, तो इस कोऑर्डिनेट्स को आप साइन थीटा और कॉस थीटा के फॉर्म में लिख सकते हैं. तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे कॉस थीटा साइन थीटा. ये आप यहां से देख सकते हैं. वी यूज हियर पाइथागोरस थ्योरम because if a triangle is a right angle triangle, then according to Pythagoras theorem, the sum of the squares of remaining two sides will be equal to the square of hypotenuse. तो यहाँ पे Pythagoras theorem की मदद से या आप जस्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को यूज करके you can derive this, that the coordinates of the point which is xy can be written as cos theta sin theta. ये कोऑर्डिनेट्स ये हम आगे यूज करेंगे. इसके साथ साथ डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, अगर प्लेन के अंदर दो पॉइंट्स हैं, लेट्स से दिस इज x1 y1 और यहाँ पे है x2 y2, और इन दोनों पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस d आपने फाइंड करना है. परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है जिसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, वो अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस फार्मूला दैट विल बी इक्वल टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर. तो ये आपका डिस्टेंस फार्मूला है. वी कैन प्रूव दिस बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. इसके साथ साथ आपके जो x एक्सिस और y एक्सिस होते हैं ये प्लेन को 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड करते हैं. पहले क्वाड्रेंट में तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होंगे, मतलब अगर आपका एंगल 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक कोई भी एंगल हो, 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक, तो इन एंगल्स पे 0 और 90 डिग्री के बीच में जितने भी एंगल्स हैं उन पे साइन, कास, टेंजेंट, सीकेंट, कोसीकेंट और कोटेंजेंट तमाम के तमाम आपको पॉजिटिव रिजल्ट देंगे. अगर आपका एंगल 90 डिग्री से लेके
180 डिग्री के बीच में, तो यहाँ पे आपका साइन और साइन का जो रिसिप्रोकल है, साइन और साइन का रिसिप्रोकल जो कोसाइन है, सॉरी कोसिकेंट, साइन और कोसिकेंट, ये दोनों पॉजिटिव होंगे, रिमेनिंग आपके पास नेगेटिव रिजल्ट देंगे व्हेन यू टेक थीटा बिटवीन 90 एंड 180 डिग्री। आपके पास 180 डिग्री और 270 डिग्री के बीच में अगर एंगल आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को दे दें तो वहां पे टेंजेंट और टेंजेंट का रिसिप्रोकल जो है कोटेंजेंट, ये दोनों आपके पास पॉजिटिव होंगे, रिमेनिंग आपके पास नेगेटिव होंगे। और इसी तरह अगर 270 डिग्री से लेके आप 360 डिग्री तक इन के बीच में कोई थीटा आप ले लें तो वहां पे कास जिसको हम कोसाइन कहते हैं और इसका रिसिप्रोकल जिसको हम सीकेंट कहते हैं, ये दोनों हमारे पास पॉजिटिव होंगे। तो इट मीन्स दैट इन द सेकंड क्वाड्रेंट आपका जो काज है सेकंड क्वाड्रेंट में टेंजेंट है या इनके रिसिप्रोकल्स है वो नेगेटिव होते हैं और साइन और इसका रिसिप्रोकल पॉजिटिव होता है। तो ये आपने याद रखना है। ये तमाम के तमाम हमारा प्रीवियस नॉलेज था, इसको हमने यूज़ करना है इन द प्रूफ ऑफ फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री को प्रूफ करने के लिए ये सारा प्रीवियस नॉलेज हम यूज़ करेंगे। ओके, तो जिस तरह मैंने कहा कि डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ इस चैप्टर के अंदर हम डिराइव करेंगे और ये तमाम आइडेंटिटीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, स्पेशली इन कैलकुलस एंड अदर ब्रांचेस ऑफ मैथमेटिक्स और इन फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, जहाँ पे हमारे पास कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करने के लिए ये तमाम के तमाम आइडेंटिटीज़ यूज़ होती हैं। और वो तमाम के तमाम आइडेंटिटीज़ आपके पास, उनमें से कुछ आइडेंटिटीज़ ये हैं जिसमें ये फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हैं और ये तमाम के तमाम जो आइडेंटिटीज़ आप देख सकते हैं फ्रॉम 1 to 10, ये इस फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की मदद से हम हासिल कर सकते हैं। तो इन तमाम ये 11 की 11 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ आप लोगों ने याद रखने हैं फॉर सॉल्विंग डिफरेंट क्वेश्चंस। ओके, तो हम फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जो है उसका प्रूफ करते हैं और फिर उसकी मदद से ये तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को डिराइव करेंगे। ओके, so for the proof of fundamental law of trigonometry, that is cos alpha minus beta, mean that is trigonometric identity of the difference of angle alpha minus beta, so that is equal to cos alpha cos beta plus sin alpha sin beta। तो इसको प्रूफ करने के लिए आई कंसिडर अ यूनिट सर्कल, आप एक यूनिट सर्कल को कंसिडर कर लें। तो यहाँ पे मैंने एक यूनिट सर्कल कंसिडर किया हुआ है and the center of the unit circle is at origin of the rectangular coordinate axis. So that's why the coordinate of this point will be 1 0, because from this point O to this point C, that is actually a radius of this circle, and I consider a unit circle, so that radius is equal to 1. So the coordinate of this point is 1 0, mean this point has 1 unit distance on x-axis and 0 unit distance on y-axis because it lies on the horizontal x-axis. So इस पॉइंट को मैंने C और ये 1 0 के बराबर है। तो ये एक यूनिट सर्कल मैंने कंसिडर किया हुआ है। यहाँ पे अब मैं दो स्टैंडर्ड एंगल्स को ड्रा करता हूं। लेट्स से ये आपका एक अल्फा है, ये अल्फा है, दैट इज अल्फा। नाउ दिस इज अल्फा, दैट इज एंगल अल्फा। तो ये आपके पास एक स्टैंडर्ड एंगल है क्योंकि इस एंगल का जो इनिशियल साइड है वो एक्स एक्सिस के ऊपर पड़ा है और इसका टर्मिनल साइड लेट्स से वो है ओ ए, और इस पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स इन टर्म्स ऑफ अल्फा आप लिख सकते हैं। जिस तरह आप लोगों ने देखा यहाँ पे कि इस पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई, मीन डिस्टेंस ऑन एक्स एक्सिस एक्स यूनिट एंड ऑन वाई एक्सिस वाई यूनिट, इस पॉइंट की पोजीशन के लिए कोऑर्डिनेट एक्स वाई, लेकिन इसको आप कॉस थीटा और साइन थीटा भी इन कोऑर्डिनेट्स को आप लिख सकते हैं। ये मैंने प्रूफ करवाया। तो सिमिलरली बाय सेम प्रोसीजर यू कैन राइट, by same procedure the coordinate of point A is cos alpha sin alpha। तो ये हमारे पास है एंगल अल्फा।
इसके साथ साथ दूसरा एक स्टैंडर्ड एंगल मैं कंस्ट्रक्ट कर लेता हूं, दैट इज एंगल बीटा। तो यहां से लेके यहां तक ये आपका एंगल बीटा है, ये जो आपका एंगल है दैट इज एंगल बीटा। एंड लेट्स से द टर्मिनल पॉइंट ऑफ द टर्मिनल साइड इज बी, और इसके कोऑर्डिनेट्स अब होंगे cos बीटा sin बीटा। ओके, नाउ ये सारा एंगल आपका था अल्फा, और यहां से लेके यहां तक आपका एंगल था बीटा। तो ये एंगल जो आपको दिखाई दे रहा है, ये एंगल दैट विल बी अल्फा माइनस बीटा। लेकिन ये एंगल अल्फा भी स्टैंडर्ड एंगल था, ये एंगल बीटा भी स्टैंडर्ड एंगल था, क्योंकि इसका इनिशियल साइड एक्स एक्सिस के ऊपर था। लेकिन ये अल्फा माइनस बीटा जो एंगल है दैट इज एक्चुअली formed by the terminal sides of angle alpha and angle beta. This OA is the terminal side of angle alpha and the OB is the terminal side of angle beta. So this alpha minus beta is the angle which is formed by the terminal sides of the angle alpha and beta. So it is not a स्टैंडर्ड एंगल। तो इस अल्फा माइनस बीटा की मेजरमेंट के बराबर आप एक स्टैंडर्ड एंगल्स यहां पे कंस्ट्रक्ट कर ले। मीन आपका टर्मिनल साइड, इनिशियल साइड उसका एक्स एक्सिस पे होना चाहिए। तो आप ये देख लें, ये एक एंगल, लेट्स से ये एंगल, लेट्स से दिस इज पॉइंट डी। तो ये एंगल आपके पास इनिशियल साइड आपका एक्स एक्सिस के ऊपर है, टर्मिनल साइड आपके पास है ओडी। तो ये अल्फा माइनस बीटा, मैंने अल्फा माइनस बीटा के बराबर एक एंगल यहां पे कंस्ट्रक्ट किया जिसका ये स्टैंडर्ड एंगल है, बिकॉज द टर्मिनल द इनिशियल साइड ऑन एक्स एक्सिस। तो इस डी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, पॉइंट डी के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो होंगे cos अल्फा माइनस बीटा sin अल्फा माइनस बीटा, एज वी डिस्कस दिस पॉइंट इन दीज टू केसेस। और ये आपके पास है डी। तो यहां आप देख सकते हैं कि ये जो आपका आर्क ए बी है इसका सेंट्रल एंगल अल्फा माइनस बीटा है, और आपका जो आर्क यहां है सी डी या डी सी, इसका सेंट्रल एंगल भी अल्फा माइनस बीटा है। तो ये याद रख लें कि if two central angles of a circle have the same measure, you clearly see that alpha minus beta and alpha minus beta are the central angles of the same measure, then the respective chords, तो इस केस में ये आपके पास chords है ए बी, ये ए बी और ये आपका सी डी, then the respective chords are also equal in measure. So according to this result we can say that AB length will be equal to CD length, mean आपका AB कार्ड CD कार्ड के बराबर होगा। यहां ये बात मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि जब आपके पास दो सेंट्रल एंगल्स के मेजरमेंट इक्वल हो, अल्फा माइनस बीटा भी एक सेंट्रल एंगल है और ये अल्फा माइनस बीटा भी एक सेंट्रल एंगल है, दोनों की मेजर बिल्कुल इक्वल है, तो इन दोनों एंगल्स के साथ जो एसोसिएटेड आर्क हैं उनके बीच में अगर आप एक लाइन ड्रा कर लें ए और बी के बीच में, सो दिस इज कॉल्ड कॉर्ड, एंड सी और डी के बीच में लाइन सेगमेंट, तो दिस इज आल्सो कॉल्ड कॉर्ड। सो ये दोनों कॉर्ड्स आपके पास हमेशा इक्वल होंगे। ओके, अब हम जाते हैं डिस्टेंस फार्मूला की मदद से। यहां आप लोगों ने देख लिया कि कार्ड अकॉर्डिंग टू दैट रिजल्ट chord AB will be equal to chord CD। अब यहां पे डिस्टेंस फार्मूला यूज होगा। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स ये हैं, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स ये हैं, तो दिस इज x1 y1, दिस इज x2 y2, तो x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट वो आपके पास ए बी कार्ड का लेंथ होगा, और सी डी के भी कोऑर्डिनेट्स गिवन हैं। डी के कोऑर्डिनेट्स cos अल्फा माइनस बीटा sin अल्फा माइनस बीटा, और सी के कोऑर्डिनेट 1 और 0 हैं। तो जब ये कोऑर्डिनेट्स आप यूज करके डिस्टेंस फार्मूला यूज कर लें तो कॉर्ड्स के लेंथ आपके पास इसी तरह आ जाएंगे। तो यहां आप देख लें, बाय डिस्टेंस फार्मूला you clearly see that
AB side, sorry, AB chord length will be cos alpha minus cos beta whole square plus sin alpha minus sin beta whole square, because this is x1 y1 and this is x2 y2 and similarly this is x1 y1 and this is x2 y2। तो उसके मुताबिक यहाँ पे CD के ऊपर डिस्टेंस फार्मूला आप यूज़ कर लें तो ये आपके पास इसी तरह आ जाएगा। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड टू रिमूव द स्क्वायर रूट, और फिर यहाँ पे हम a माइनस बी होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab वो यूज़ करते हैं। और फिर उसके साथ साथ ये हम एक आइडेंटिटी यहाँ पे यूज़ करते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और यहाँ पे अगर आप यूनिट सर्कल में राइट एंगल ट्राइंगल ले लेते हैं और वहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते हैं तो वहाँ से आप ये फाइंड कर सकते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होगा। ओके, ये मैंने यहाँ पे आप लोग को दिखा भी दिया कि इस यूनिट सर्कल के अंदर अगर आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर लें तो आपके पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर आएगा। तो ये आप देख सकते हैं। तो ये आइडेंटिटीज आप इनमें से यूज़ करके आपके पास सिंप्लीफिकेशन करके यू गेट कॉस अल्फा माइनस बीटा, मीन एंगल यहाँ पे जो है दैट इज द डिफरेंस ऑफ एंगल्स। अल्फा और बीटा दो एंगल्स थे लेकिन इनका डिफरेंस है, सो दैट्स व्हाई दिस इज द आइडेंटिटी विच इज नोन एज द ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी ऑफ डिफरेंस ऑफ एंगल which is the fundamental law of trigonometry। तो cos अल्फा माइनस बीटा cos अल्फा cos बीटा प्लस sin अल्फा sin बीटा के बराबर आपके पास आ गया। तो इसको आप लोगों ने याद रखना है। इसकी मदद से रिमेनिंग 10 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को हम प्रूफ करेंगे या डिराइव करेंगे। तो ये आपके पास जो यू मस्ट रिमेंबर दिस फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। सो ये इसका प्रूफ था। अब डिडक्शंस फ्रॉम द फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ये जो फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है इससे हमने डिडक्शंस की हैं। तो इसके लिए फार्मूला नंबर 1 जो है जो इससे डिड्यूस हुआ है वो है cos माइनस बीटा इज इक्वल टू कॉस बीटा। अब फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री आपके पास ये है। तो इस फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में जिसको हमने प्रूव किया अल्फा की जगह पे 0 ले ले तो cos माइनस बीटा ये अल्फा 0 हो जाएगा, तो 0 माइनस बीटा मीन माइनस बीटा, ये cos 0 cos बीटा प्लस साइन 0 साइन बीटा। तो cos 0 डिग्री 0 के बराबर होती है, सॉरी cos 0 डिग्री 1 के बराबर होती है और साइन 0 डिग्री 0 के बराबर होती है। तो यहाँ पे 0 मल्टीप्लाइड बाय दिस उससे 0 आएगा, 1 मल्टीप्लाइड बाय दिस उससे cos बीटा आ जाएगा। तो ये आपने याद रखना है कि cos माइनस बीटा cos बीटा के बराबर होती है और ये हमने फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से प्रूफ करवाया। इसी तरह दूसरा जो है cos 5/2 माइनस बीटा इज इक्वल टू साइन बीटा। ये याद रख ले कि π/2 आपके पास 90 डिग्री के बराबर होता है। तो फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री आपके पास ये है जिसको हमने प्रूफ करवाया। यहाँ पे अल्फा की जगह पे आप π/2 को पुट कर ले तो ये आपके पास π/2, यहाँ पे आपके पास π/2, यहाँ अल्फा की जगह π/2। तो cos π/2 मीन cos 90 0 के बराबर, साइन π/2 मीन साइन 90 1 के बराबर। तो यहाँ से आपके पास cos π/2 माइनस बीटा से आ जाएगा साइन बीटा। इसके बाद थर्ड जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हमने डिड्यूस की है फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से, वो आपके पास है साइन अल्फा बाई साइन π/2 प्लस अल्फा इज इक्वल टू कॉस अल्फा। तो हमने ये प्रूफ करवाया, ये आप यहाँ से देख सकते हैं कि cos π/2 माइनस बीटा साइन बीटा के बराबर होता है। तो इसको हमने अब यूटिलाइज करना है टू प्रूव दिस आइडेंटिटी। तो यहाँ इसमें से ये जो आपको बीटा दिखाई दे रहा है इसको रिप्लेस कर ले π/2 प्लस अल्फा से। तो जब यहाँ पे हम ये बीटा π/2 प्लस अल्फा से रिप्लेस करते हैं तो इस लेफ्ट हैंड साइड से हमें क्या मिलता है, इस लेफ्ट हैंड साइड से हमें cos माइनस अल्फा मिलता है और ये आपका ये रिक्वायर्ड लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगा क्योंकि बीटा को आप इससे रिप्लेस कर रहे हो। तो ये रिप्लेसमेंट और यहाँ पे cos माइनस अल्फा cos अल्फा के बराबर होगा क्योंकि ये हमने फर्स्ट डिडक्शन में ये फार्मूला प्रूव करवाया कि cos माइनस बीटा cos बीटा के बराबर होता है। सो दैट इज द प्रूफ ऑफ दिस आइडेंटिटी। फोर्थ cos π/2 प्लस अल्फा, ये आपने याद रखना है, ये आगे यूज होगा। साइन π/2 प्लस अल्फा cos अल्फा के बराबर है और cos π/2 प्लस अल्फा माइनस साइन
अल्फा के बराबर है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आप ले लें। इस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में आप इस बीटा को -π/2 में, दिस इज फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इसमें आप क्या करें, इस बीटा को -π/2 से रिप्लेस कर ले। तो यहाँ पे माइनस और माइनस प्लस और ये अल्फा प्लस π/2 हो जाएगा। तो ये अल्फा प्लस π/2 और इस साइड में काज अल्फा अपनी जगह पे, बीटा की जगह पे -π/2 होगा, साइन अल्फा अपनी जगह पे और साइन में बीटा की जगह पे -π/2 होगा। तो cos -π/2 cos π/2 के बराबर होता है। और ये याद रख ले कि साइन माइनस बीटा हमारे पास माइनस साइन बीटा के बराबर होता है। तो यहाँ पे ये माइनस हम बाहर लिख लेंगे, या इसको आप -1 के बराबर लिख सकते हैं, क्योंकि साइन 90 आपके पास है 1, तो साइन -π/2 मीन्स विच इज इक्वल टू माइनस टाइम साइन π/2, सो ये -1 के बराबर आ जाएगा। तो इससे हमारे पास ये आ जाएगा ये रिजल्ट, और ये रिजल्ट हम कमिंग जो आइडेंटिटी है उसमें हम इसको प्रूफ करवाएंगे, इनको यूज करवाएंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं द नेक्स्ट आइडेंटिटी इज cos अल्फा प्लस बीटा विच इज इक्वल टू cos अल्फा cos बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में cos अल्फा माइनस बीटा है, डिफरेंस ऑफ द एंगल है, यहाँ पे सम ऑफ द एंगल है। तो यहाँ पे इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, जस्ट फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में बीटा को माइनस बीटा से रिप्लेस कर ले। तो ये आपके पास माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे cos माइनस बीटा होगा और ये साइन माइनस बीटा, तो cos माइनस बीटा cos बीटा के बराबर है और साइन माइनस बीटा माइनस साइन बीटा के बराबर है। तो ये सब्स्टिट्यूशन करके आपके पास cos अल्फा प्लस बीटा इसके बराबर आ जाएगा। सिमिलरली साइन अल्फा प्लस बीटा अब किसके बराबर होगा, तो साइन अल्फा प्लस बीटा साइन अल्फा cos बीटा प्लस cos अल्फा साइन बीटा के बराबर होता है। इसको प्रूफ करने के लिए हम आइडेंटिटी नंबर 5 यूज करेंगे। दैट आइडेंटिटी विल बी यूज फॉर द प्रूफ ऑफ दिस आइडेंटिटी। तो ये आप यहाँ से मैंने ये 5 आइडेंटिटी जो हमने प्रूफ करवाई उसको यहाँ पे लिख लिया। इस आइडेंटिटी के अंदर आप अल्फा को π/2 प्लस अल्फा से रिप्लेस कर ले, मीन 90 डिग्री प्लस अल्फा से इस अल्फा को रिप्लेस कर ले। जहाँ पे अल्फा है वहाँ पे इसको आप इससे रिप्लेस कर ले, तो ये आपके पास इसी तरह बन जाएगा। यहाँ पे इसको मैं लिख सकता हूँ cos π/2 प्लस अल्फा प्लस बीटा को मैं cos π/2 अल्फा प्लस बीटा ऐसे लिख ले, इनको अपनी जगह पे लिख लें। तो यहाँ पे हमने 3 और 4 में ये दो आइडेंटिटीज प्रूव करवाए थे कि cos π/2 प्लस अल्फा माइनस साइन अल्फा के बराबर होगा। तो यहाँ देख ले cos π/2 प्लस अल्फा प्लस बीटा है, तो इस 4 के मुताबिक ये बराबर होगा माइनस साइन अल्फा प्लस बीटा के। एंड सिमिलरली cos π/2 प्लस अल्फा माइनस साइन अल्फा के बराबर होगा अकॉर्डिंग टू 4, वी ऑलरेडी प्रूव दिस। और ये साइन 5/2 प्लस अल्फा प्लस cos अल्फा के बराबर होगा। तो जस्ट ये सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे करके माइनस दोनों अतराफ में कॉमन कर लें, तो साइन अल्फा प्लस बीटा विल बी इक्वल टू साइन अल्फा cos बीटा प्लस cos अल्फा साइन बीटा। सिमिलरली यू नीड टू प्रूव, ये देखिए ये आइडेंटिटी आपने अब प्रूव करवाई, आइडेंटिटी नंबर 6। आइडेंटिटी नंबर 7 में साइन अल्फा माइनस बीटा, यहाँ पे साइन अल्फा प्लस बीटा था, तो ये बराबर होगा साइन अल्फा cos बीटा माइनस cos अल्फा साइन बीटा। तो जस्ट रिप्लेस बीटा बाय माइनस बीटा इन दिस आइडेंटिटी नंबर 6। तो वहाँ से ये रिजल्ट आप यूज कर ले कि cos माइनस बीटा विल बी इक्वल टू cos बीटा एंड साइन माइनस बीटा इज इक्वल टू माइनस साइन बीटा। तो उसके मुताबिक ये आइडेंटिटी आपकी प्रूफ हो जाएगी। ये आप लोगों ने याद रखना है। ये याद रख ले कि टेंजेंट माइनस थीटा बराबर होता है माइनस टेंजेंट थीटा के। क्यों? क्योंकि टेंजेंट आप सबको पता है कि साइन बाय कास के बराबर होगा। तो टेंजेंट माइनस थीटा माइनस साइन माइनस थीटा डिवाइड बाय कास माइनस थीटा के। आप सबको पता है कि साइन माइनस थीटा माइनस टाइम साइन थीटा और कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा के बराबर होता है। इसको हमने प्रूफ किया फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से कि कास माइनस बीटा बराबर होता है कास बीटा के। तो यहाँ पे एक माइनस इससे ऊपर बाहर आ जाएगा, लेकिन ये माइनस आपके पास प्लस हो जाएगा। तो आप देखिए माइनस मैंने अलग लिखा है, ये साइन थीटा डिवाइड बाय कास थीटा टेंजेंट थीटा के। तो यू क्लियरली सी दैट टेंजेंट माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस टाइम्स टेंजेंट थीटा। ये आपने याद रखना है। आइडेंटिटी नंबर 9, आइडेंटिटी नंबर 9 में आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये जो आइडेंटिटी नंबर 9 है इसमें है टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा। ये बराबर होगा टेंजेंट अल्फा प्लस टेंजेंट
बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा। तो इनमें से आप सबको पता है कि अगर ये लेफ्ट हैंड साइड में कंसिडर कर लूँ तो टेंजेंट साइन बाय अल्फा के बराबर, साइन बाय कॉस के बराबर होता है। फिर आप साइन अल्फा प्लस बीटा आपने प्रूफ करवाया कि दैट इज इक्वल टू साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन बीटा कॉस अल्फा एंड कॉस अल्फा प्लस बीटा, ये कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा के बराबर होते हैं। ये दोनों हमने आगे प्रूफ करवाए। तो यहाँ आप क्या करें कि ये जो नोमिनेटर है और डिनोमिनेटर, इनको कॉस अल्फा कॉस बीटा से डिवाइड कर लें। तो ये आप कैलकुलेशन कर लें तो यहाँ से आपके पास आपका अपना रिक्वायर्ड प्रूफ मिल जाएगा। एंड फॉर द प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी नंबर 10, इस आइडेंटिटी नंबर 10 को प्रूव करने के लिए आप क्या करें, जस्ट रिप्लेस दिस बीटा बाय माइनस बीटा, तो ये आपका प्रूफ हो जाएगा। नाउ एग्जांपल नंबर 1 विच इज इंक्लूडेड इन एक्सरसाइज इन द एक्सेलरेटेड कोर्स। एग्जांपल 1 में क्या है, फाइंड टेंजेंट 15 डिग्री एग्जैक्टली। तो इस 15 डिग्री को आप 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि मैंने आपको बताया कि 0 डिग्री का 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री, इनकी साइन और काज आपको मालूम होने चाहिए। तो अगर साइन काज मालूम है तो टेंजेंट आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि टेंजेंट असल में साइन काज की डिवीजन होती है, रेशो होती है। इसी तरह को टेंजेंट सीकन और कोसीकन भी आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं इफ़ यू नो साइन एंड काज। तो टेंजेंट 15 डिग्री की एग्जैक्ट वैल्यू मुझे चाहिए विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर। तो ये 15 डिग्री 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री मैं लिख सकता हूँ। तो टेंजेंट 15 डिग्री को मैं टेंजेंट 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री लिख सकता हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं कि टेंजेंट अल्फा माइनस बीटा, टेंजेंट अल्फा माइनस टेंजेंट बीटा डिवाइड बाय 1 प्लस टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा के बराबर होता है। तो यहाँ से आप देख लें कि मैंने अल्फा की जगह 45 डिग्री, बीटा की जगह पे 30 डिग्री इस आइडेंटिटी के अंदर जस्ट रिप्लेस किया हुआ है। अब मुझे टेंजेंट 45 और टेंजेंट 30 चाहिए। तो आपको पता है कि साइन 45 डिग्री 1 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 2, कॉस 45 डिग्री 1 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 2 के बराबर होते हैं। तो यहाँ से टेंजेंट 45 डिग्री साइन 45 कॉस 45 को डिवाइड करने से मिलेगी और वो आपके पास होगी 1। सिमिलरली आपको टेंजेंट 30 डिग्री चाहिए। तो टेंजेंट 30 के लिए आई नीड साइन 30 डिग्री एंड कॉस 30 डिग्री। तो साइन 30 1 डिवाइड बाई 2 और कॉस 30 स्क्वायर रूट 3 बाई 2। सो व्हेन यू डिवाइड साइन 30 बाई कॉस 30, सो आपको टेंजेंट 30 1 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 3 के मिलेगी। तो टेंजेंट 45 डिग्री और टेंजेंट 15 डिग्री विच इज इक्वल टू टेंजेंट 45 माइनस 30 डिग्री, ये इसके बराबर था। टेंजेंट 45 की जगह पे 1 पुट कर लें और टेंजेंट 30 की जगह पे 1 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 3 पुट कर लें, एलसीएम ले लें, तो ये आपको एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाएगी। एग्जाम्पल नंबर 3 विच इज आल्सो इंक्लूडेड इन द एक्सेलरेटेड कोर्स। ओके, सो एग्जाम्पल नंबर 3 में हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल नंबर 3 में आपको दो एंगल्स गिवन है, दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज गिवन है कि आपका साइन अल्फा है दैट इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय 13 और कॉस अल्फा जो है कॉस बीटा दैट इज 3 बाय 15। और यहाँ पे ये अल्फा और बीटा ये आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट के ये एंगल हैं। तो आप सबको पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमारे पास क्या होते हैं, वो हमारे पास पॉजिटिव होते हैं। अब आपने इस क्वेश्चन के अंदर फाइंड क्या करना है, इस क्वेश्चन के अंदर आपने फाइंड करना है कि अल्फा प्लस बीटा किस क्वाड्रेंट के अंदर होगा। आपने ये डिसाइड करना है कि अल्फा प्लस बीटा का क्वाड्रेंट कौन सा होगा, ये किस क्वाड्रेंट का एंगल होगा। तो अब अगर अल्फा बीटा पॉजिटिव है तो अल्फा प्लस बीटा किस क्वाड्रेंट का एंगल होगा, इसके लिए हम क्या करते हैं, हम कॉस अल्फा प्लस बीटा लेंगे। ये क्यों लेंगे, ये इसी वजह से लेंगे कि हमें पता है कि कोसाइन इज नेगेटिव इन द सेकंड क्वाड्रेंट, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉस साइन और इसका रेसिप्रोकल कोसेकंट दोनों पॉजिटिव होते हैं। थर्ड में भी आपका जो है टेंजेंट और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होता है। फोर्थ में आपके पास क्या होता है, फोर्थ में काज और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होता है। लेकिन यहाँ पे ये दिया गया है कि आपका अल्फा और बीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल है। तो अल्फा और बीटा अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल हैं तो यहाँ आपको अल्फा प्लस बीटा जो एंगल होगा वो किस क्वाड्रेंट में होगा, इसके लिए हम कोसाइन लेंगे, क्योंकि कोसाइन सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर नेगेटिव होता है। तो वो कॉस अल्फा प्लस बीटा मीन कोसाइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा। दिस इज द ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी ऑफ द सम ऑफ एंगल्स। सो फ्रॉम द
fundamental law of trigonometry, we deduce that cos alpha plus beta is equal to cos alpha cos beta minus sin अल्फा sin बीटा, ये इसके बराबर होता है। तो यहां असल में cos अल्फा तो आपके पास गिवन है, सॉरी cos बीटा गिवन है, cos बीटा इज 3/5 और इसके साथ होगा cos अल्फा माइनस फिर आपका जो होगा sin अल्फा दैट इज 12 डिवाइडेड बाय 13 sin बीटा। तो यहां अब मुझे क्या चाहिए, मुझे sin अल्फा और cos अल्फा और sin बीटा मुझे चाहिए। तो इसको फाइंड करने के लिए आई विल यूज दी बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी विच इज sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1। तो ये आप देख लें कि cos स्क्वायर अल्फा विल बी इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर अल्फा एंड यू नो दैट cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस sin अल्फा होल स्क्वायर। ये जो आपका स्क्वायर है ये होल स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे cos स्क्वायर अल्फा होगा 1 माइनस 12 डिवाइडेड बाय 13 होल स्क्वायर। तो यहाँ से मिल गया cos अल्फा होल स्क्वायर, यू कैन राइट cos स्क्वायर अल्फा इज cos अल्फा होल स्क्वायर दैट इज 1 माइनस 144 डिवाइड बाय 169, क्योंकि दोनों का स्क्वायर है तो cos अल्फा होल स्क्वायर विल बी 169 माइनस 144 डिवाइड बाय 169 और ऊपर से आपके पास क्या आएगा, when you subtract 144 from 169 so that will be 25 divided by 169. So taking square root on both sides to remove the square, क्योंकि यहाँ पे मुझे cos अल्फा की ज़रूरत है, cos अल्फा की ज़रूरत है। तो ये आपके पास आएगा प्लस माइनस 5 डिवाइड बाय 13। अब यहाँ पे आप पॉजिटिव वैल्यू लोगे या नेगेटिव, मैं यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू लूँगा क्योंकि आपका जो अल्फा है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये आपका अल्फा जो है दैट इज इन दी फर्स्ट क्वाड्रेंट और आप सबको पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है। तो cos अल्फा आपके पास आया 5/13। सिमिलरली आपका जो साइन बीटा आपने फाइंड करना है तो साइन स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर बीटा 1 के बराबर होता है। तो साइन स्क्वायर बीटा 1 माइनस cos स्क्वायर बीटा के बराबर होगा। तो साइन बीटा होल स्क्वायर इसको मैं लिख सकता हूँ और ये 1 माइनस और cos बीटा की वैल्यू है 3/5 आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये होगा 3/5 होल स्क्वायर। सो साइन बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस that is 9 divided by 25, so that is 25 minus 9 divided by 25, so यहाँ ये होगा 16/25. So taking square root on both sides to find out the sin, so sin बीटा होगा प्लस माइनस 4/25। तो यहाँ पे sin बीटा की पॉजिटिव वैल्यू आप लोगे या नेगेटिव, आई विल कंसिडर द पॉजिटिव वैल्यू बिकॉज यू नो दैट दैट विल बी 5, ये आपके पास 5 होगा। पॉजिटिव वैल्यू इसी वजह से साइन की ली है क्योंकि आपको पता है कि बीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है, दैट इज इन दी फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो ये आपके पास साइन बीटा आ गया और ये आपके पास cos अल्फा आ गया। तो आप क्या कर लें, यहाँ पे ये cos अल्फा प्लस बीटा दिस इज 3/5। cos अल्फा की वैल्यू क्या आई थी, cos अल्फा की वैल्यू आई थी आपके पास 5/13, सो दैट इज 5/13 और यहाँ से 12/13। साइन बीटा की वैल्यू आपके पास आई थी 4/5, सो दैट इज 4/5। इसको आप कैलकुलेट कर ले, सो यू गेट -33 डिवाइड बाय 65। तो आप लोगों ने देख लिया कि यहाँ पे कोसाइन इस एंगल के ऊपर, ये एक ही एंगल है, जब दो एंगल आप ऐड करते तो यू गेट अ सिंगल मेजर ऑफ द एंगल। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा जो एंगल है उस पे आपका कोसाइन मीन काज नेगेटिव है। और काज कहाँ नेगेटिव होता है, काज आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर नेगेटिव होता है, सही है। तो यहां से मैं लिख सकता हूं कि अल्फा प्लस बीटा इज द सेकंड क्वाड्रेंट एंगल। ये आपके पास क्या है, ये सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है, यहां से हम कह सकते हैं कि ये सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है। सो दैट इज द example number 3 which is included in the accelerated course on page 291. Thank you.